Hello students, this is second lecture on topic electromagnetic induction. Last lecture में हम लोगों ने concept of electromagnetic induction, induce current and induce EMF डिस्कस किया था. थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ. डायग्राम में देखो ये है when positive charge is projected with velocity v through the magnetic field. Force acts on the positive charge. This force is perpendicular to the velocity of charge, perpendicular to the direction of magnetic field. It is called as the Lorentz force. It is given by this formula. F is equal to Q V bar cross B bar. या magnitude में F is equal to Q V B sin theta. Whenever positive charge is projected in the direction of magnetic field or in opposite direction of magnetic field, यानी थीटा का वैल्यू 0 या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, force acting on that charge particle is always 0. Whenever positive charge is projected perpendicular to the magnetic field, यानी angle 90 degree, then sin 90 degree becomes 1. Force acting on that particle becomes maximum. That is F is equal to QVB. So whenever positive charge is projected perpendicular to the magnetic field, it experiences the maximum force due to magnetic field. F is equal to QVB. And direction of this force is given by Fleming left hand rule या right hand palm rule. दोनों में से कोई एक. ये हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में भी डिस्कस किया है और लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था. When coil carrying the electric current is kept in a magnetic field, it becomes a source of magnetic field. When coil is carrying the electric current, the current carrying coil behaves like a magnet. Its one face acts as an N pole while the other face acts as a S pole. Which face acts as an N pole or S pole, that can be determined by right hand loop rule. तो राइट हैंड लूप रूल ये है कि 4 fingers of the right hand follow the loop यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb is perpendicular to the plane of that coil. If 4 fingers following the loop gives you the direction of electric current, then thumb, which is perpendicular to the plane of coil, gives you the direction of magnetic dipole moment, M bar. So that phase becomes what? N pole, while the second phase becomes S pole. Dipole moment is given by this formula, N into IA. Direction of magnetic dipole moment is perpendicular to the plane of coil. If plane of coil is represented by area vector, then dipole moment vector and area vector are parallel to each other. Whenever current carrying coil is suspended in magnetic field, then torque acts on that coil and the coil rotates. Torque acting on the coil is given by the formula M bar cross B bar. Magnitude रहेगा MB sin theta. ये जो torque रहेगा, it is perpendicular to vector M, perpendicular to the vector B, or perpendicular to the plane formed by intersection of M bar and B bar. Right? Okay. अगर सिंगल टर्न वाला कॉइल रहेगा तो एम बी साइन थीटा हम लोग एन की जगह आई ए ले सकते हैं. अगर एन टर्न्स रहेगा तो एन आई ए लेंगे. इस डायग्राम में देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर राइटवर्ड. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड एन पोल इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एस पोल इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. So magnetic lines of force are therefore rightward, started from N pole, terminate on S pole. अगर मैंने एक एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, इस एरिया को मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर को मैंने वेक्टर साइन दिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर. Then how many magnetic lines of force are passing this area? How many magnetic lines of force are passing through this area
and perpendicular to the area. That quantity is called as magnetic flux. Magnetic lines of force passing normally through given area. This area is drawn in magnetic field. This is called as magnetic flux. तो ये जो magnetic flux रहेगा phi is directly proportional to the area drawn. ये area जितना बढ़ाओगे उतना magnetic flux बढ़ेगा. लेकिन magnetic flux phi upon area A, this ratio always remain constant. That constant ratio is called as magnetic flux density, B bar, या intensity of magnetic field, या magnetic field of induction, right? Okay. तो जब ये area, when this area is perpendicular to magnetic field होगा, या area vector parallel to the magnetic field होगा, तो flux is maximum. When this area is perpendicular to magnetic field होगा, sorry, area vector is perpendicular to magnetic field होगा, यानी area parallel to the magnetic field होगा, तो magnetic flux is 0. और जब थोड़ा incline होगा या oblique होगा, तो magnetic flux का formula रहेगा field और area vector का cos component या area vector और field का cos component, ऐसे. So these are the different cases of magnetic flux. ये 3 केसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए, ये वापस पढ़ लेने का. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिज्म में भी डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट में भी डिस्कस किया. तो मैं वापस नहीं पढ़ता हूँ. दीज आर द सपोर्टिंग टॉपिक्स, दैट इज वाई. अभी कैसे रहेगा? व्हेनेवर यू पुट कॉइल और इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कॉइल या इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा? जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है. तो whenever you keep the coil या इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल का जो एरिया रहेगा, थ्रू दैट एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड टू पास. तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक विद दैट कॉइल या अर्थ्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद दैट कॉइल. Whenever we change the magnetic flux link with the coil, or whenever we change the magnetic field link with that coil, okay, कैसे change करेंगे वो बात में देखते हैं. There are many ways to change. So whenever we change the magnetic flux and magnetic field link with the coil, EMF is induced in that coil. Yeah, energy is generated in that coil. That energy, yeah, EMF is called as induced EMF. And because of that, the current flows through that coil. That is called as induced current. It's called as what? Induced current. क्योंकि जब आप कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, तो कॉइल इज केप्ट इन अ टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कंसेप्ट आएगा. सो व्हेनेवर कॉइल इज केप्ट इन अ टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द EMF and hence the induced current flows through the coil. This is called as electricity due to magnetism या electromagnetic induction. तो ये तीनों डेफिनेशन प्रिपेयर करो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट. वापस एक बार बोल देता हूँ. Whenever there is a change in magnetic field या flux link with the coil, EMF is induced in the coil and induced current flows. This phenomenon is called as electromagnetic induction. The EMF so induced is called as induced EMF and the current is therefore called induced current. ये तीनों प्रिपेयर. अभी रिलेटेड टू दिस टॉपिक साइंटिस्ट फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. ये पहला एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए देखो. उन्होंने एक कॉइल रखा इन सीरीज विद द कॉइल, करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट से गैल्वेनोमीटर, सॉरी सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर इज केप्ट एंड मैग्नेट इज केप्ट नियर टू इट. अभी डायग्राम में एस पोल इज नियर द कॉइल. तो साइंटिस्ट ने प्रोसीजर के कौन से स्टेप्स फॉलो करे देखो, और साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन भी कैसे ले. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी थोड़ा हम लोग समराइज कर रहे हैं. साइंटिस्ट ने देखा कि एज लॉन्ग एज दिस मैग्नेट इज एट रेस्ट विद द कॉइल या कॉइल इज एट रेस्ट विद द मैग्नेट, यानी सेपरेशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, दिस गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. तो इससे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल
या इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट चेंज, energy is not induced in the coil, no induced current flows, and that is why galvanometer do not show any deflection. राइट ओके। बाद में साइंटिस्ट ने 4 स्टेप फॉलो किए। एस पोल इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द कॉइल, एस पोल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द कॉइल, एन पोल इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द कॉइल, एन पोल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द कॉइल। ये मैग्नेट उल्टा रखा, एन पोल इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द कॉइल, एन पोल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द कॉइल। So here scientists introduce relative motion between the magnet and coil, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि as long as this magnet is kept in motion, either approach or reset, EMF is induced in the coil, induced current flows, and as long as induced current flows, galvanometer pointer shows momentary deflection. क्योंकि जब तक ये मोशन में रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होते रहेगा, और जब तक वो चेंज होगा एनर्जी इंड्यूस होते रहेगा, इंड्यूस करंट फ्लो होते रहेगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। Scientists observe 3 more things. When S pole is displaced towards the coil and N pole is displaced away from the coil, galvanometer shows same side of deflection. When S pole is displaced towards the coil and N pole is displaced away from the coil, मतलब मानो ये S pole है, इधर डिस्प्लेस करो, तब डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। ये मैग्नेट उल्टा करो, N यहाँ पे रखो और रीसेट करो, तब डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व सेम साइड ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। कब? N का अप्रोच और S का रीसेट। तब या when S pole is reset and N pole approaches, तब deflections observed in galvanometer are also same but on opposite side. ये 2 observation scientists ने लिए, and one more important observation was taken by the scientists. When either pole of the magnet is displaced towards the coil with a greater and greater speed, scientists observe that pointer shows speedy deflection. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए साइंटिस्ट ने और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। सेम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट बाय कीपिंग द मैग्नेट एट रेस्ट एंड बाय डिस्प्लेसिंग द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब यहाँ पे दिया है प्रिसाइजली, तो ये आप पढ़ो। ये एग्जाम्पल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट बाय टेकिंग द 2 कॉइल्स। ये पहला कॉइल है, दिस कॉइल इज मेड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेट का जगह लेने जा रहा है, सो इट इज मेड मैग्नेट बाय पासिंग द करंट थ्रू इट। और ये कॉइल अपना पुराना वाला गैल्वेनोमीटर इस कनेक्टेड, तो ये मैग्नेट की जगह आ गया और ये कॉइल आ गया। तो दोनों कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक इज व्हाट सेम है, मानो कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम है तो जब आप यहाँ पे ये करंट की टैप करोगे तो करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल विल इंक्रीज। सो एज लॉन्ग एज करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल इंक्रीजेस, magnetic field link with the second coil changes, EMF is induced in the second coil, induced current flows. अगर एक की ओपन किया तो अगेन द सेम थिंग हैपेंस बट करंट फ्लोज इन द सेकंड कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। सो बाय द साइंटिस्ट सेम ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन जो मैग्नेट कॉइल के एक्सपेरिमेंट में लेते, तो ये यहाँ पे है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। वो कंक्लूजन्स थे जिनको आज हम लोग फैराडेज लॉ से इंडिकेट करते हैं। तो पहला कंक्लूजन था, as long as there is no relative motion between the magnet and coil, या coil and magnet, या coil and coil, EMF magnetic field link with the coil will not change, EMF will not induce in the coil, induced current will not flow, galvanometer will not show any deflection. ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, as long as there is a relative motion between the magnet and coil या coil, magnetic field link with the coil changes, EMF is induced in the coil, induced current flows through the coil, galvanometer shows momentary deflection. तो ये है law analogous to Newton's first law of motion. Just according to Newton's first law of motion, every inanimate body continue to remain either in a state of rest or in a state of constant velocity unless it is acted upon by external unbalanced force to change that state. The first law भी ऐसे, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल या इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज नहीं करोगे, EMF will not be induced in the coil and a coil will not become a source of energy, no induced current will flow,
and galvanometer will not show any deflection. लेकिन as long as you keep changing the magnetic field link with the coil by changing the relative motion, EMF is induced current flows. और जब तक चेंज करोगे तब तक galvanometer पॉइंटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाते रहेगा. So first law is analogous to Newton's first law of motion. दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? हाँ, यहाँ साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और लिया कि जितना स्पीड से आप रिलेटिव मोशन को कंप्लीट करोगे उतना स्पीड से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उतना स्पीड से करंट इंड्यूस होता है एंड गैल्वेनोमीटर पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है. सो इट इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ये था. तो ये लॉ भी सिमिलर है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल is directly proportional to the rate with which flux changes with the coil. तो देखो ये साइंटिस्ट ने लिया phi is directly proportional to d phi by dt. फिर यह कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए गए. ये कांस्टेंट फॉर सिंप्लिसिटी 1 लिया गया. तो mod E is equal to d phi by dt. ये फॉर्मूला आ गया. अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो जो डिस्कशन एक टर्न के लिए वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सेम रहेगा. तो all those turns become the source of EMF और सब सीरीज में आ रहे. तो जैसे हम लोग EMF ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे EMF ऐड हो जाता है. तो n phi d phi by d ये होता है. राइट नाउ यहाँ प्रॉब्लम था कि साइंटिस्ट लेंज ने और एक ऑब्जर्वेशन लिया. साइंटिस्ट लेंज का ये ऑब्जर्वेशन था जो एनालॉगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और एक लिया कि व्हेन देयर अकर्स अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होता है. लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल बिकॉज ऑफ व्हिच ईएमएफ इज इंड्यूस एंड इंड्यूस करंट फ्लोस. तो कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसे होता है कि इट अपोजेस द कॉज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. मतलब कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो कॉइल बिकम्स द डाइपोल. तो कॉइल का एक फेस एन पोल एक्ट होगा, एक एस पोल एक्ट होगा. तो कौन सा क्या एक्ट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय लेंज लॉ. तो मैं लेंज लॉ पहले पढ़ देता हूँ. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट is such that magnetic field produced by the induced current opposes the change in magnetic flux that induces the current. सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे वापस लेके जाता डायग्राम पे. इसमें कैसे होता है? ये एक्स पोल माना अप्रोच ये अपोजिट डायरेक्शन जाता है. तो व्हाई फॉर अप्रोच एंड रीसेट गैल्वेनोमीटर पॉइंटर शोज डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड. इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट चेंजेस व्हेन पोल अप्रोचेस एंड पोल रीसेट. व्हाई इट हैपेंस? तो ये पार्ट साइंटिस्ट लेंज ने एक्सप्लेन किया एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेंज लॉ. अभी होता क्या है देखो, जब ये एस पोल अप्रोच करेगा तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा. तो अभी कॉइल में से जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? दोनों में से कुछ तो एक होगा. अगर ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, अकॉर्डिंगली इस कॉइल का एक फेस एन और दूसरा फेस एस होगा. राइट? एन होगा, एस होगा एंड दे देयरफॉर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब पोल अप्रोच करता है और पोल रिसेट करता है, पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डिफ्लेक्शन जाता है. इसका क्लियर मीनिंग है ये जो कॉइल का एक फेस है ये एन और एस बदलते रहता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट बदल रहा है. इसका मतलब कॉइल का एक एन पोल जो एक्ट हो रहा था, अप्रोच में अगर एन एक्ट हो रहा तो रिसेट में एस एक्ट हो रहा है. राइट? सो यहाँ लेंज लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ. तो अकॉर्डिंग टू लेंज कंसेप्ट ये था कि जब मैग्नेट का कोई एक पोल कॉइल को अप्रोच करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल विल चेंज. ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, इंड्यूस करंट फ्लोस. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसे रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल नॉट अलाउ द ईएमएफ टू इंड्यूस इन द कॉइल. It will not allow the change in magnetic field link with the coil to happen. So it will not
allow this pole either to approach or reset. इसका clear understanding है, direction of current is such that it opposes the cause responsible for its production. मतलब इस करंट को कौन इंड्यूस कर रहा है, उस कॉज को ये करंट अपोज करेगा. सो करंट विल सेट इन द कॉइल इन सच दैट इट विल अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. मतलब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अलाउ नहीं करेगा. इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर ये पोल अप्रोच कर रहा है तो ये अप्रोच को अपोज करेगा. अगर ये पोल दूर जा रहा है तो ये रीसेट को अपोज करेगा. मतलब ये एस पोल अगर अप्रोच कर रहा है तो ये आने नहीं देगा, अगर ये दूर जा रहा है तो ये जाने नहीं देगा. दिस इज हाउ दिस करंट डायरेक्शन डिसाइड्स कि इस कॉइल का फेस एन और एस कैसे एक्ट होता है. अभी हम लोग वहाँ एक्चुअली उसका जो कंसेप्ट है मैं उसमें आपको समझा देता हूँ. देखो कैसे, ये लेंज लॉ, इट इज एनालॉगस टू थर्ड लॉ. अभी डायग्राम में देखो, मानो ये कॉइल है, ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है. ये कॉइल है, राइट. इस कॉइल के सीरीज में मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया. तो थ्रू दिस कॉइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आर पासिंग. जैसे मैंने यहाँ दिखाया, देखो दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग हियर. यहाँ पे भी पास हो रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे भी पास हो रहा है. ठीक है. तो ये मैग्नेट शुरू में मैंने रेस्ट में रखा. हाँ, ध्यान रहे इस कॉइल के साथ में मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. इसके सामने मैंने एन पोल फेसिंग रखा है. करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ध्यान रहे. हाँ, ये खाली एक कॉइल है और इसके सीरीज में मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा है टू चेक करंट फ्लो होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा. और इस सामने मैंने एन पोल रखा है. तो इस कॉइल में से करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल इज व्हाट, कांस्टेंट, क्योंकि ये मैग्नेट उसके सामने रेस्ट में है. अभी होगा क्या, देखो ये एन पोल मानो अप्रोच कर रहा है कॉइल को. जब ये एन पोल कॉइल को अप्रोच करेगा तो व्हाट विल हैपन, थ्रू दिस कॉइल एरिया लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग विल इंक्रीज इन नंबर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल विल चेंज. इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हमें इस मीनिंग में इंटरेस्ट नहीं. जब ये एन पोल अप्रोच करेगा सो थ्रू दिस एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि इसके लाइंस पास होंगे. सो एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल विल चेंज. कब तक चेंज होते रहेगा, ये एन पोल अगर आप मोशन में रखोगे, अप्रोच कंटिन्यू रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल चेंज होते रहेगा. तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. अगर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होगा. अगर इंड्यूस करंट फ्लो होगा तो इन सीरीज विद द कॉइल हियर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, सो दैट गैल्वेनोमीटर विल शो यू मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. अभी डायरेक्शन, तो इसमें से भी करंट अगर फ्लो हो रहा है कॉइल में से, सो दिस करंट कैरिंग कॉइल आल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेट. तो इस कॉइल का फ्रंट फेस और बैक फेस एन और एस एक्ट होंगे. अभी फ्रंट एन एक्ट होगा या एस एक्ट होगा, ये हमें डिसाइड करना है, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय लेंज लॉ. तो अभी मैं क्या करता हूँ, रॉन्ग प्रेडिक्ट करता हूँ. देखो कैसे, मानो ये एन पोल जब कॉइल को अप्रोच कर रहा है, इंड्यूस करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. The direction of induced current in the coil is such that front face acts as a S pole. ऐसे assume करो. मैं wrong prediction ले रहा हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा. मैंने आपको क्या बोला, अगर ये N पोल अप्रोच कर रहा है कॉइल को, N पोल अगर कॉइल को अप्रोच कर रहा है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल इज व्हाट, चेंजिंग. मुझे इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड में इंटरेस्ट नहीं है. ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा. अभी जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस कॉइल एक्ट्स एज अ मैग्नेट. इस कॉइल का एक फेस एन और दूसरा फेस एस एक्ट होगा. तो कैसे एक्ट होगा, देखो मैंने एक स्टेटमेंट एज्यूम किया कि लेट करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज सच दैट, मुझे अभी नहीं पता करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मुझे नहीं पता.
current passing through this coil is such that front face acts as a S pole. Front face acts as a S pole. अगर फ्रंट फेस एक्ट्स एज एस पोल रहेगा तो इस कॉइल में से करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा. ये मैंने प्रेडिक्शन किया, गलत या सही बाद में कंक्लूड करते हैं. तो अभी सोचो, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज सच दैट फ्रंट फेस एक्ट्स एज अ एस पोल. इसका मतलब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा. ये हम लोगों ने एज्यूम किया. अभी अपना जो एजम्पशन है वो सही या गलत हम लोग डिसाइड करते हैं. अभी प्रैक्टिकली सोचो, अगर सामने का फेस एस एक्ट होगा, ये एन उसको अप्रोच कर रहा है, तो इस एन को आगे पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है? इसको वेलकम कर रहा है. बिकॉज देर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स. अगर ये एस बिहेव करने लगेगा तो ये खुद होके उधर जाएगा. अगर ये खुद होके उधर जाएगा तो ये क्लियरली कंक्लूड कर रहा है कि इसको अप्रोच के लिए एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है. खाली आप इसको रख दो, थोड़ा धक्का दे दो. जैसे धक्का दोगे, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट. ये अगर सामने से एस हो जाने वाला है तो इसको वापस डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये खुद जाएगा उधर. जैसे आप एक मास हाइट पे लेके जाए, वहां से उसको नीचे फेंकने की जरूरत नहीं है, आप रिलीज कर दो, वो नीचे खुद आ जाएगा. तो अगर ये फेस जो हम लोगों ने एज्यूम किया कि एस एक्ट होगा, तो ये एन पोल बाय इटसेल्फ विल अप्रोच द फेस. इसका मीनिंग क्या होगा? विदाउट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एनर्जी जनरेटेड इन अ सर्किट. तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्टरी टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब एजेंट काम नहीं कर रहा है, एजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं कर रहा है, उसने खाली प्रोसेस इनिशिएट किया था. तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो प्रेडिक्शन गलत था, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या था? अप्रोच किया, करंट इन द इंड्यूस करंट इन द कॉइल मैंने ऐसे कंसीडर किया कि सामने वाला फेस एस एक्ट होने लगा, तो ये खुद इसको अट्रैक्ट करेगा एंड विदाउट द वर्क डन ये अप्रोच करते जाएगा और कॉइल में एनर्जी इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगा. तो ये सिचुएशन हो जाएगा विदाउट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एनर्जी इज इंड्यूस इन द सर्किट. इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब मैंने जो प्रेडिक्शन किया वो गलत था. तो राइट प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए? सामने का फेस एन एक्ट होना चाहिए. तो मेरा राइट प्रेडिक्शन का लैंग्वेज क्या रहेगा? जब ये एन पोल अप्रोच करेगा, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, direction of induced current is such that front face acts as a N pole. अभी सोचो, अगर फ्रंट N एक्ट होगा जो डायग्राम में दिख रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. अगर ये N एक्ट होगा तो इस N पोल को अप्रोच के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा. So here external agent will do the work against the force of repulsion, and that work done is converted into energy, and that energy is induced in this coil. So as long as approach continues, energy is induced in the coil and induced current flows. So it is clear to you कि यहाँ पे direction of current कैसे आता है? Direction of current ऐसे रहेगा, तो ये coil का सामने का face को ऐसे सेट करेगा, तो the direction of current will oppose the cause responsible for its production. मतलब उसको कौन जनरेट कर रहा है, उसी कॉज को वो अपोज करेगा. उसको कौन जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना. मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? इस पोल का अप्रोच. तो करंट ऐसे सेट होगा, तो फेस पोल ऐसे एक्ट होगा कि अप्रोच को अपोज किया जाएगा. सेम थिंग यहाँ पे भी है. देखो, अगर मैं एन पोल अभी दूर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं एन पोल को दूर लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा? देखो, अगर मैं एन पोल को दूर लेके जा रहा हूँ तो रीसेड को ये कॉइल अलाउ नहीं करेगा. अगर मैं एन पोल लेके जा रहा हूँ तो करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज सच दैट फ्रंट फेस ऑफ दिस कॉइल एक्ट्स एज अ अनलाइक पोल. फ्रंट फेस एक्ट्स एज अ अनलाइक पोल. अगर ये अनलाइक पोल बिहेव करने लगेगा तो ये रीसेट को अलाउ नहीं करेगा. That is why for approach and for reset, current induced in the coil is what? In opposite direction, and hence galvanometer in that experiment shows opposite deflections. तो हमेशा याद रखो,
अप्रोच में कॉइल का सामने का फेस लाइक पोल बिहेव करता है। एन अप्रोच करोगे तो एन एक्ट होगा, एस अप्रोच करोगे तो एस एक्ट होगा, सो दैट देर इज अ रिपल्शन, देर इज अ अपोजिशन फॉर अप्रोच। और जब रीसेट करोगे, उसको दूर लेके जाओगे, तो सामने का फेस ऐसे एक्ट होगा कि उसको दूर नहीं जाने देगा, मतलब ये अनलाइक एक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट दिमाग में रखो। फॉर अप्रोच, front face of the coil through which induced current is passing behaves like a like pole, and for reset, direction of current in that coil, direction of induced current in that coil such that front face acts as a S pole। तो अप्रोच को लाइक पोल, रीसेट को अनलाइक पोल, क्योंकि दिस लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अप्रोच के लिए भी काम करना पड़ेगा एजेंट को, रीसेट के लिए भी काम करना पड़ेगा एजेंट को। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वो एकदम प्रीसाइज है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन लाइट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैं ये यहाँ से पढ़ता नहीं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो लेंस लॉ इज व्हाट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। जैसे आप किसी बॉल को किक कर रहे हैं, तो बॉल किक की वजह से डिस्प्लेस होने वाला है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए अपोज करता है। सो इट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल, अपोजिट एंड साइमल्टेनियस फोर्स ऑन द एजेंट बाय हुम द फोर्स इज एक्सर्टेड। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन इंट्रोड्यूस करता ही करता है। ये क्वेश्चन आप कर लो। ये क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तो अभी देखो, explain how Lenz law incorporated to Faraday's law। अभी फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स लिंक विद द कॉइल का, ये देखो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। 1 मिनट, ये यहाँ पे ये देखो, NAB cos थीटा, हियर इट इज द फॉर्मूला। ये देखो AB cos थीटा, ये सिंगल टर्न के लिए। अगर n टर्न्स रहेंगे तो यहाँ n भी आ जाएगा, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल रहेगा NAB cos थीटा। तुम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा कि whenever there is a change in magnetic flux link with the coil, EMF is induced in the coil and induced current flows। ये Faraday's first law है। दूसरा लॉ था rate of change of magnetic flux link with the coil, magnitude of EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux, यानी E is directly proportional to d phi by dt। और तीसरा लॉ था कि EMF induced in the coil या induced current is in such a direction that it opposes the change in magnetic flux link with the coil which produces it। मतलब उसके प्रोडक्शन का जो कॉज है उसी कॉज को वो अपोज करता है। ये तीन थे। तो आपको कॉइल में ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके आप कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो। सो एज लॉन्ग एज यू कीप चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। और जब तक इंड्यूस करंट फ्लो होगा, कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर विल शो यू मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद द टाइम फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। By changing the rotation of the coil, an angle between vector A and vector B, फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पैरामीटर्स कितने हैं, N A B cos थीटा। तो चारों में से मिनिमम एक पैरामीटर अगर आप टाइम के साथ चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होते रहेगा और कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। मिनिमम एक चेंज करना है, मैक्सिमम आप चारों के चारों चेंज कर सकते हैं। राइट, ओके। तो आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएंगे वो ऐसे रहेंगे, एरिया चेंज करके, फील्ड चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न चेंज करके, या
एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करके। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन फैराडेज लॉ। मतलब देखो फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, एन ए बी कॉस थीटा। उनका कहना है अगर आप खाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करते रहोगे तो भी ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। फिर कॉइल का एरिया कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, whatever the area with which magnetic field is linked and whatever the angle between area vector and field vector, अगर आप ये दोनों चीजें कांस्टेंट रखोगे, keep changing the magnetic field link with the coil, EMF इंड्यूस होते रहेगा। ये एक आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, टाइम पास क्वेश्चन है, राइट। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है, खाली आप पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, और आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने बी चेंज करके, यहाँ पे अगर मैं बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखूँ, अगर मैं एरिया भी चेंज करते जाऊँ, बाय चेंजिंग द एरिया आल्सो यू कैन चेंज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, क्योंकि एरिया बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो एरिया अगर आप टाइम के साथ चेंज करते रहोगे तो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होते रहेगा और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होते रहेगा। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो दोनों, मैं नहीं पढ़ा था, बकवास क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों क्वेश्चन, जस्ट डू इट। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अगले लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करो और हो सके तो कंटिन्यू देखने का, गैप छोड़ के नहीं देखने का। चलो, थैंक यू।